truly a matter of great pleasure that this MMUT has been selected to host this online program on this occasion of Intellectual Property Literacy Day. The objective of this awareness program is to just enhance the spirit of innovation among the students right from the very beginning. I feel that innovation starts right at the early stage. It's not at the very later stage. We might have seen some of the students at the standard of 10 and 10 plus 2. They have developed so many good ideas, good projects. So I feel that in this university, first year students, second year students, third year and final students all are doing a lot of work, but somehow we are not able to convert their innovations to up to that extent where this can be patented or this can be converted to some fruitful outcome which can be useful for the society. Here we have to work. Here we have to work a lot because I come across so many students who are coming uh, to uh, to discuss their projects to us and say that sir, this is the project we have developed. But due to lack of resources and lack of the proper mentorship, that innovation capability, that innovation idea that gets hampered. So Honorable Vice Chancellor sir established IPR cell very soon, and we are very much thankful to him. In fact, this is a platform that has been created in this university where we can provide this kind of the resource to the student. And we can provide some technical help to the students, those who are lacking knowledge in the area of the patents. Moreover, some of the laboratories are also popping up in this university. One of them is the IoT and road laboratory, where we are also providing the good platform to the students, where their innovations spirit can be nurtured. So I'm very much thankful to this AICT and for this providing this opportunity to spread this awareness about this IP among the students. And I hope that most of the students will come forward with their innovative ideas and will be able to help them to the great extent. So I request ma'am to start this beautiful lecture on this topic and benefit our students to the great extent. Thank you, ma'am. And please start. Thank you very much, sir. Now I request Madam to please share his valuable experience. Thank you so much, sir. And greetings to all. And I'm sharing my screen with you all. Okay, ma'am. I think we can just start right now. Yeah. Right? Okay. The screen is visible to all? Yes, ma'am. It is very much visible. Okay, sir. So I would like to interact with all the students. And as and when I'm asking something, please respond through this WhatsApp group that sir has just created, or you can just talk to me directly here. And please make sure that there are less interruptions in between, right? So as you know, this is the session about intellectual property rights. So first of all, before understanding what is an intellectual property, we have some idea about what is a property. When we think about a property, what we imagine, what we think about. So anyone can answer this question? You all are comfortable in English, or should I opt for Hindi? स्टूडेंट्स आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो आप सभी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई कहता है प्रॉपर्टी, तो इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? Yeah. I request the students to please respond. Okay.
Ma'am, तो things which we own can be said that it is property. जब हम सोचते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, तो हम सोचते हैं गाड़ी, घर, ज्वेलरी एंड फोन, राइट? बट these are the properties which are tangible. Their nature is tangible. It means we can touch, we can feel, we can see directly these properties. But there are certain properties which are intangible, means they are not directly seen by our eyes. And one of the example of intangible property is intellectual property. So intellectual property meaning what? Our intellect means our buddhimata in Hindi, buddhi. So intellectual property means a property which is created through human intellect. So हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए कितने एफर्ट लगाते हैं। हम कार का इंश्योरेंस करते हैं, हमारे घर का हम डॉक्यूमेंट संभाल कर रखते हैं, ज्वेलरी हम लॉकर में रखते हैं। इसी तरह हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? एनी आइडिया अबाउट दिस? आई थिंक एक ऑनलाइन सेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है कॉलेज में, राइट? तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है आप लोगों से। तो सबसे पहले आप में से मुझे ये बताइए कि एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, पढ़ने में सभी को दिक्कत होती है, ज्यादा लंबा बैठने में दिक्कत आती है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई बुक है जो हमें पढ़नी है, हम अपने पिलो के नीचे रखें और सुबह तक वो सारी बुक का कंटेंट हमारे माइंड में आ जाए, अगर ऐसे बुक हमारे पास आ जाए तो कैसा रहेगा बताइए? अगर ऐसा पिलो आ जाए जिसके नीचे बुक रखने से सारा डेटा हमारे माइंड में आ जाए, हमारे दिमाग में सब चीजें आ जाए बिना याद किए एफर्ट लगाए, तो कैसा रहेगा? ऐसा पिलो चाहिए ना हमें? आप में से कोई बनाना चाहेगा ऐसा पिलो? ऐसा पिलो, ऐसा तकिया जिसके नीचे बुक रखने से सुबह तक आपके दिमाग में सारा डेटा फिट हो जाएगा। चाहिए ऐसा तकिया हमें? मैम इससे बढ़िया क्या होगा बच्चों के लिए? यस मैम। हाँ, तो अब आपका नाम क्या है बताइए? अब एक स्टूडेंट की आवाज मुझे आई थी, आपका नाम बताइए मुझे प्लीज। मैम मैं प्रोसेस के सुनी Good बोल रहा morning, हूँ ma'am. मैं। हाँ हाँ हाँ, बताइए। बच्चों प्लीज। अभी एक प्यारी सी आवाज मैंने सुनी बच्ची की, अपना नाम बताइए। Good morning, ma'am. My name is Supriya Goel. ठीक है, तो अब हम सुप्रिया का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये जो मैंने पिलो का एग्जाम्पल दिया ना, ऐसा मैजिकल पिलो जिसके नीचे आपने बुक रखी, रात में आप सोए और सुबह तक सारा डेटा आपके माइंड में आ गया, बिना पढ़े बिना एफर्ट लगाए सब आपको याद है। तो सुप्रिया आज की तारीख में मान लीजिए उन्हें ये आइडिया है कि कैसे इन्हें वो पिलो पिलो बनाना है। तो सुप्रिया ने बनाना शुरू किया वो पिलो, और 5 साल लग गए सुप्रिया को वो पिलो बनाने में, और सारे जो भी जमा पूंजी थी सारी खर्च हो गई। तो 5 साल बाद लेकिन वो पिलो बन गया। अब वो पिलो जो बना उसको लेके सुप्रिया ने सोचा चलो थोड़ा कमर्शियल बेनिफिट लिया जाए, इसको मार्केट में बेचा जाए, क्योंकि इस पिलो की डिमांड तो बहुत है, सभी लोग खरीदेंगे। तो सुप्रिया आप अपने पिलो को कितने में बेचना चाहेंगे? और आपने 5 साल लगाए हैं इस पिलो पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए मार्केट में? बताइए बताइए सुप्रिया। Ma'am, it on like the market. What's the market value going on, or something? I'm not sure. मार्केट, देखिए मार्केट वैल्यू तो कुछ अभी नहीं पता होगी ना, क्योंकि वो पिलो तो सिर्फ Oh आप ही yes, के पास है okay. ना, वो पूरी Yes. वर्ल्ड में आप ही के पास वो पिलो है और हाई डिमांड में है। आपने अपने लाइफ के 5 साल उस पे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसकी वैल्यू आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? जितने में आप दोगे सब उसी में खरीदेंगे, बताइए कितने में बेचेंगे आप? 1 लाख Sorry, रुपीज ma'am. मान लें। I don't know.
चलो मैं हेल्प करती हूँ। अगर मैं होती आपके जगह तो मैं 1 लाख रुपए चार्ज करती, लगभग ज्यादा करती, पर चलिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए का वो एक पिलो होगा, ठीक है। तो अब वो पिलो Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Something. Yes, ma'am. Yeah. Yes, Supriya, please go ahead. Yes, sir. बोलो बोलो। हाँ जी, जितना हाँ जी, तुम ठीक। जितना इन्वेस्टमेंट किया तुमने और 5 साल लगाया है तो कितने में? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर पिलो? दिस इज व्हाट मैम आस्किंग। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस, आवाज आ रही है मैम आपकी, बिल्कुल क्लियर ओके, आवाज आ रही है। तो वो पिलो 1 लाख रुपए में मान लेते हैं सुप्रिया को मार्केट में बेचना है। तो अब सुप्रिया ने जैसे ही वो पिलो मार्केट में लॉन्च किया, कुछ लोगों ने क्या किया, वो पिलो खरीदा और उसको ओपन करके उसका वर्किंग प्रिंसिपल सब चेक किया और उसकी कॉपी बना ली 5 दिन में। सुप्रिया ने बनाया वो पिलो 5 साल में, और उन लोगों ने कॉपी करके कितने दिन में बनाया? 5 दिन में। तो अब वो मार्केट में कितने में बेचेंगे उसे? अब सुप्रिया ने तो 5 साल लगाए थे, तो 1 लाख रुपीज रेट रखी थी। अब उनको तो 1 लाख रुपए में ही बेचेंगे, तो सुप्रिया वाली पिलो तो कंपटीशन देगी। तो वो 1 लाख से अगर वो 50,000 भी कम मतलब अगर वो 10,000 भी कम रखेंगे, 80,000 का भी बेचेंगे, तो लोग उसी से खरीदेंगे। आप सब अच्छे बच्चे हैं, मैं मान लेती हूँ वो मैं ही हूँ जिसने कॉपी किया। तो मैं अगर उस पिलो को 80,000 में बेचूंगी, 90 में बेचूंगी, तब भी मेरा ही पिलो सब खरीदेंगे, सुप्रिया से नहीं खरीदेंगे। तो वो जो पिलो है वो सुप्रिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और जब मैं उसको बेच रही हूँ तो इसका मतलब है कि सुप्रिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी कर लिया है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ राइट्स देती है, उन्हें हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। आज हम 5 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करेंगे। पेटेंट्स, डिजाइंस, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई एंड कॉपीराइट्स। इनमें से पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों को आइडिया होगा, पर आज जो अगर कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। देखिए, हम में से सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया है, जैसा सर ने बताया था कि 11th-12th के बच्चों के पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं, पर उन्हें करना क्या है नहीं पता है। तो जब ये आइडियाज हैं, ये आइडियाज की फॉर्म में प्रोटेक्टेड नहीं है, पर ये आइडियाज जब इनोवेशन की फॉर्म लेते हैं तो इन्हें पेटेंट के अंडर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जब ये आइडियाज एक्सप्रेशन की फॉर्म लेते हैं तो इनके लिए जो हमें राइट मिलता है प्रोटेक्ट करने के लिए, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कॉपीराइट कहते हैं। और एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं? राइटिंग, डांसिंग, और राइटिंग में नॉवल भी हो सकता है, मूवी की स्क्रिप्ट हो सकती है, डांस, ड्रामा। और जब किसी आइडिया को जब आप बनाते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो उसकी जो अपीयरेंस है, आउटर लुक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन राइट दिया जाता है। और आपकी आइडिया जब आइडेंटिटी की फॉर्म लेते हैं, यानी कोई ब्रांड होता है, कंपनी का नाम होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क लिया जाता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट की। व्हाट इज अ पेटेंट? पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, राइट? मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपकी ओर से। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है, वॉइस इज आल्सो क्लियर। ओके ओके ओके, तो मेरी स्क्रीन में विजिबल है कि व्हाट इज अ पेटेंट। पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये होता है, मैम ये अभी फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा है, आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम, बोली तो फर्स्ट पेज इज ओके ओके, तो स्लाइड्स तो मैंने काफी चेंज कर दिया है। अभी भी दिखाई दे रहा है भाई? नहीं, अब ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, एक मिनट। ओके, इट्स ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये स्लाइड विजिबल है अभी? पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल यस इंडिकेशन यस एंड कॉपीराइट। यस, या दिस इज विजिबल जी, तो आज हम इन 5 राइट्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आपके आइडियाज एज सच आइडिया की फॉर्म में प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, लेकिन जब वो आइडिया इनोवेशन या इन्वेंशन की फॉर्म लेता है तो पेटेंट कहलाता है। इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या फर्क है, ये मैं बताऊंगी आपको आगे कि इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। जब आपका आइडिया एक्सप्रेशन की फॉर्म लेता है तो उसे हम कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
जब अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी आर्टिकल के आउटर जो उसका एस्थेटिक वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन राइट ले सकते हैं, और कोई ब्रांड वैल्यू है, कोई टैगलाइन है, उसके लिए हम ट्रेडमार्क लेते हैं। तो अब इनके बारे में एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि पेटेंट क्या है। पेटेंट एक प्राइवेट राइट है। देखिए, इसका मीनिंग ये है कि जब आपको पेटेंट मिल जाता है किसी चीज का, तो वो राइट सिर्फ आपका है, वो एक्सक्लूड करता है बाकी सभी को आपका वो पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज करने से। आपकी मर्जी के बिना, आपकी कंसेंट के बिना वो प्रोडक्ट जो इसका आपने पेटेंट लिया है उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, बनाकर मैन्युफैक्चर करके बेच नहीं सकता। जैसे कि मैंने शुरू में पिलो के एग्जांपल से बताया था, अगर पिलो का सुप्रिया ने पेटेंट लिया होता तो कोई उसको कॉपी नहीं कर पाता, अगर कॉपी करता तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जा सकता था। और पेटेंट एक नई चीज के लिए लिया जाता है, ऐसा हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा, राइट, कि कोई भी नई चीज होनी चाहिए, पहले से एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन पेटेंट उन चीजों के लिए भी लिया जा सकता है जो पहले से है, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं जिनसे या तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है या उनकी कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गई है। और पेटेंट बाकी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरह ही एक इसेंशियल कंडीशन के साथ मिलता है कि आपका पेटेंटेड सब्जेक्ट मैटर आपको पूरी तरह से डिस्क्लोज करना पड़ता है इंडियन पेटेंट ऑफिस के सामने। यानी कि जितने भी आईपीआर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनको जब ग्रांट किया जाता है उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि आपको अपना पूरा जो आप जिसका प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हो, अपना प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसे, क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे बनाते हैं, हर चीज माइन्यूट डिटेल्स के साथ। अच्छा, अब पेटेंट ऐसा है कि पेटेंट जब ले लिया तो इंडिया में पेटेंट ले लिया तो क्या हर जगह हमें पेटेंट मिल गया? ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल पेटेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। इंडिया में पेटेंट लिया है तो वो इंडिया में ही एनफोर्स हो सकता है, बाहर की कंट्री में नहीं हो सकता। यानी टेरिटोरियल नेचर होता है पेटेंट का। टेरिटरी का मीनिंग यहाँ पर एक सोवरेन से है। कहने का मतलब है कि एक कंट्री यानी एक सोवरेन अथॉरिटी पेटेंट ग्रांट करती है। अगर इंडिया में पेटेंट मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो आप उसी प्रोडक्ट को अमेरिका में एनफोर्स नहीं करवा सकते। अगर सुप्रिया ने पिलो का पेटेंट इंडिया में लिया है तो उस पिलो को अगर कोई अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, यूज कर रहा है, तो उस पे सुप्रिया लीगल एक्शन नहीं ले सकते। उसके लिए सुप्रिया को अमेरिका में जाके वहां भी पेटेंट फाइल करना पड़ेगा, वहां भी पेटेंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक पेटेंट एक्ट है एंड पेटेंट रूल्स होते हैं। इनमें कुछ लीगल और फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है, बिकॉज ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फील्ड है ये टेक्नो लीगल फील्ड है। टेक्निकल है क्योंकि आपने जो मशीन या कोई भी चीज बनाई है वो टेक्निकल तो है ही। लीगल इसलिए है क्योंकि आपको पेटेंट मिलेगा कि नहीं ये देखा जाता है पेटेंट एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग। उसी में सेक्शन 3 और 4 है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थिंग है, खासकर सेक्शन 3 के। इसमें नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 के में कंप्यूटर प्रोग्राम पर से कैटेगरी होती है, एक बिजनेस मेथड एंड कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। यानी अगर आप प्योरली सॉफ्टवेयर का अगर पेटेंट लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा। उसका कॉपीराइट आप ले सकते हैं इंडिया में, लेकिन सेक्शन 3 के अंडर कंप्यूटर प्रोग्राम पर से का पेटेंट नहीं लिया जा सकता है। सेक्शन 4 सीक्रेसी डायरेक्शन से रिलेटेड है। यानी अगर आप कुछ ऐसे चीज क्लेम कर रहे हैं, ऐसी चीज का पेटेंट लेना चाहते हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सेफ्टी को हार्म हो सकता है, तो ऐसी चीजें डीआरडीओ के पास अप्रूवल के लिए भेजी जाती हैं। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड अगर आपका इन्वेंशन है तो फिर उसको एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास भेजा जाता है। एक स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा, नहीं हो रहा है? हाँ, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिखा रहा है जिसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स लिखा हुआ है। स्लाइड इज ये नॉट दिक्कत चेंजिंग। आ रही है। तो ठीक है, मैं इसी स्क्रीन पे रखती हूँ, छोटे स्क्रीन पे विजिबल है आपको अभी? हाँ, ये तो विजिबल है या हाँ, मैं इसको स्लाइड शो में नहीं ले जाके यहीं पर करती हूँ एक्सप्लेन, राइट।
तो पेटेंट हमें किसी प्रोडक्ट का मिल सकता है, प्रोसेस का मिल सकता है। यानी पेटेंट लेने के लिए सब्जेक्ट मैटर एक मशीन होना चाहिए, मशीन या मशीन बनाने का मेथड। और मशीन क्या है? हर वो चीज जो जिंदगी को आसान बनाती है वो मशीन है ना। एक मूवी आई थी ना, 3 इडियट्स, उसमें यही डायलॉग था कि मशीन वो है जो जिंदगी को आसान बना देती है, काम आसान करती है। तो हर मशीन के लिए, मशीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट लिया जाता है, मशीन एज सच भी और मशीन बनाने का मेथड भी। और पेटेंट की ही कैटेगरी में दवाइयाँ भी आती हैं, वैक्सीन्स भी आती हैं। जैसे अभी हमें कोविशील्ड वैक्सीन लगी है बहुत लोगों को, तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसका पेटेंट है। पेटेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बनाने के लिए ये लाइसेंस दिया हुआ है। और ये कुछ एग्जांपल और मैं दिखाऊंगी अभी पेटेंट के। ट्रैफिक लाइट्स जो आप देखते हैं, ये एक मॉर्गन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 1923 में इसको इन्वेंट किया था और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी। इसके पीछे छोटी सी स्टोरी ये है कि एक एक्सीडेंट उन्होंने देखा था, एक घोड़ा गाड़ी मैम जो होती, हॉर्स कैरियज। हाँ जी। मैम मुझे एक डाउट है। अच्छा, डाउट आप आखिर में पूछिएगा प्लीज, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, हो अच्छा सकता ठीक है है, इन बिटवीन आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक ठीक, ओके मैम, ओके मैम। ओके ओके। तो मॉर्गन ने एक हॉर्स कैरेज और एक कार के बीच में एक्सीडेंट देखा था, तो बहुत ही टेरिबल था। तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा लाइट्स का सिस्टम कुछ ऐसा बना सकते हैं हम, जिससे एक डेफिनेट वे में, डेफिनेट पाथ में गाड़ियां चले और एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। और एयरक्राफ्ट, मशीनें बड़ी बड़ी, सिर्फ उन्हीं के लिए पेटेंट नहीं मिलता, छोटी सी पेपर क्लिप भी मशीन की कैटेगरी में आती है। यही बताने के लिए मैंने इसको एग्जांपल में लिया है कि पेपर क्लिप का भी पेटेंट लिया गया था 1927 में। ये जो एनवी अप कप है, जिससे टॉडलर्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, वो पानी दूध पीते रहते हैं, ये गिरता नहीं है इसमें से, लेकिन वो जब पियेंगे तो वो पी सकते हैं इससे। ये कुछ और एग्जांपल है, पेन स्कैनर है, इनके भी पेटेंट्स लिए जाते हैं। ड्रोन्स, आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे ड्रोन क्या होता है। और ये राइट में टॉप पे जो आपको बैंड दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, फोन आपकी जेब में हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन बैंड के थ्रू आप फोन की स्क्रीन हाथ पर देख पा रहे हैं। तरह का सर्टिफिकेट मिलता है पेटेंट के लिए हमें। अब आप ये जानना चाहेंगे पेटेंट एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए रहेगा? ऐसा नहीं होता। पेटेंट सिर्फ मैक्सिमम 20 सालों के लिए मिल सकता है, उसके बाद पेटेंट लैप्स हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके बाद आपका जो भी इन्वेंशन था, जो आपने जानकारी डिस्क्लोज की थी इंडियन पेटेंट ऑफिस के सामने, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब उसको कोई भी बना सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। अब उस प्रोडक्ट पर आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर पर मैं थोड़ा सा बताती हूँ ब्रीफ में, क्योंकि सर ने कहा था कि फाइलिंग में बहुत दिक्कत आती है। पेटेंट फाइल आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैंने एक पेटेंट एक्ट का नाम लिया था, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एंड पेटेंट रूल्स 2005। और एक्ट का नाम लेते ही ये हमें पता है कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, यानी इसमें कुछ फॉर्म सबमिट करने रहते हैं। इनमें से कुछ मैंडेटरी होते हैं और कुछ कुछ शर्तों के साथ आते हैं कि हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स लेने हैं। तो जैसे कि फॉर्म 1 है, इसे हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। फॉर्म 2 हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है पूरा, जहां हम एक्सप्लेन करते हैं हमारा इन्वेंशन, उसका फ्रंट पेज होता है। फॉर्म 3 में हम वो डिटेल्स देते हैं कि हमने इंडिया से बाहर भी फाइल किया है या नहीं किया है। और फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होता है, यानी अगर आपको पेटेंट लेना है तो ही आपको फॉर्म 18 डालना है, अदरवाइज सिर्फ पब्लिश होने तक आपको रखना है अपना पेटेंट, तो फिर फॉर्म 18 फाइल करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है एप्लीकेंट को पेटेंट नहीं लेना होता है, सिर्फ पब्लिश करवाना होता है, फाइल करना होता है एज ए प्रूफ कि हाँ मैंने ये चीज आज की तारीख में मेरे पास अवेलेबल है, ये, ताकि कोई और बनाए तो वो कॉपी ना कर पाए। लेकिन आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे अगर पेटेंट नहीं लिया है तो, क्योंकि आपके पास राइट नहीं है अभी। ये इनकी फीस है, मैंने थोड़ा जस्ट आइडिया आपको देने के लिए। और अभी रिसेंटली चेंज हो गई है ये फीस, अभी 2022 में ही चेंज हुई है, थोड़ा टाइम पहले ही।
अच्छा, इसमें ऐसा होता है कई बार कि पेटेंट लेने में बहुत टाइम लगता था पहले, फाइल करना, उसका प्रोसेस 20 साल के लिए पेटेंट मिलता था, और लेकिन जब तक पेटेंट मिलता था तब तक 20 साल खत्म भी हो जाते थे। तो अभी 2016 के बाद से एक प्रोविजन आया है, एक SIPP स्कीम आई थी, तो उसमें ऐसा था, उसका सारांश ये है कि इसमें एक एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन का प्रोविजन दिया गया है। यानी अब से ये जितनी भी कैटेगरीज जो मैंने इसमें लिखी है, ये सभी एलिजिबल है एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए। एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने फाइल की है वो प्रायोरिटी बेसिस पे चेक होगी। एक क्यू होती है हमारे पास पेटेंट ऑफिस में कि आप हम डेट RQ के मतलब डेट के हिसाब से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं फाइल्स का। लेकिन अगर आपकी इस कैटेगरी में अगर एप्लीकेशन आती है तो आपकी सबसे ऊपर दिखाई देती है एप्लीकेशन, और वो बहुत जल्दी डिस्पोज होती है, बहुत जल्दी ली जाती है। इस कैटेगरी में आते हैं स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी, या अगर आपकी जॉइंट, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं तो उनमें कोई भी एक फीमेल हो या फीमेल एप्लीकेंट हो, अगर आपका इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुआ हो, फॉर एग्जांपल IITs हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसके अंडर उनको बनाया गया था, या आपने अपनी एप्लीकेशन में इंडिया को इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी डेजिग्नेट किया है, या फिर आप कोई और कंट्री के लिए भी ये अवेलेबल है, जैसे जापान के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें जापान की कुछ पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एप्लीकेशंस इस कैटेगरी में आती हैं। एज ए स्टूडेंट आप अपना करियर अगर IPR की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्जामिनर बन सकते हैं, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस। अगर आप लॉ की फील्ड से हैं तो एग्जामिनर ऑफ कॉपीराइट्स बन सकते हैं, ट्रेडमार्क एंड GI के एग्जामिनर बन सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए तो आप पेटेंट ड्राफ्टिंग में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नागपुर में। गवर्नमेंट एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फिलहाल इंडिया में, RGNII-PM उसे बोलते हैं, जिसकी डिटेल के लिए भी मैंने इसमें लास्ट में स्लाइड डाली है। तो उस जो ये राइट साइड में अदर्स का कॉलम है, ये सभी चीज़ों के लिए आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई भी कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जब फाइल करते हैं पेटेंट तो रिसेंटली उनके लिए फीस में 80% रिडक्शन किया गया है। एडिशनली अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो 10% रिबेट और मिलती है। ऑफलाइन में वो 10% एक्स्ट्रा लगता है, ऑनलाइन में 10% कम लगता है। तो अभी पेटेंट के बारे में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम पेटेंट लेने के लिए अगर हम मन बनाते हैं तो उसे कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है, हमें कहीं पब्लिश नहीं करवाना है। हमें सबसे पहले पेटेंट ऑफिस में पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल लगानी है और उसके बाद ही उसको कहीं बताना है। और ऐसा होता है कई बार कि हमने जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमें डर है कि उस बीच में उसको कोई कॉपी कर सकता है, मेरा आइडिया चोरी हो सकता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि अब इसके बाद आपको 1 साल का समय मिल जाता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के लिए। यानी कि अब इस 1 साल में आपको अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके फिर आपको फाइल सबमिट करनी पड़ेगी ऑफिस में पेटेंट के लिए। और पेटेंट की फील्ड में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार टाइमलाइन मिस हो जाती है तो उसकी कोई रिमेडी नहीं है। इसमें एक एग्जांपल मैं देती हूँ, FER, क्योंकि आई थिंक एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको पता है कि FER क्या है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो जो ये FER है, इसका रिप्लाई हमें 6 महीने में चाहिए होता है एप्लीकेंट से। अगर ये 6 महीने खत्म होने से पहले एप्लीकेंट एक्सटेंशन नहीं मांगता है, एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्म होता है फॉर्म 4, अगर वो नहीं फाइल करता है, 6 मंथ्स लैप्स हो जाते हैं, तब वो आपकी फाइल वहीं पर एंड हो जाती है, मतलब अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। आप सभी एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं कि आप में से किसी ने पेटेंट फाइल किया है कभी? स्टूडेंट्स में से किया है किसी ने? बताइए। नहीं किया है? ठीक है, तो अगर आप ये पूछेंगे तो मैं क्वेश्चन में लेती हूँ लास्ट में, अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ सारी चीजें। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है डिजाइन्स। अब डिजाइन किन किन चीजों के लिए लिया जाता है?
हम घर में जितने भी चीजें देखते हैं, घर और घर से बाहर, स्लाइड दिख रही है आपको, इसमें खिलौना भी है, इसमें किसी जैसे प्लाईबोर्ड का पैटर्न भी हो सकता है, ज्वेलरी का डिजाइन भी हो सकता है, लट्टू जिसे हम खेलते थे बचपन में, आपका मास्क है, पंखे का डिजाइन है। जो भी चीजें हमें आसपास दिखाई दे रही हैं, उनका जो आउटर लुक है, एस्थेटिक एस्पेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका डिजाइन प्रोटेक्ट करने के लिए हमको डिजाइन राइट मिलता है। और ये रिसेंट एग्जांपल महिंद्रा थार का दिखाई दे रही है आपको नीचे। अभी न्यूज में आपने पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले कि महिंद्रा की थार और जीप की रैंगलर में एक डिस्प्यूट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें ये था कि जो महिंद्रा की थार का मॉडल है और जीप का रैंगलर का जो मॉडल है बिल्कुल मिलता जुलता है। तो महिंद्रा ने इसका थार का डिजाइन राइट लिया हुआ है इंडिया में, और जीप ने अपने रैंगलर का लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। जब महिंद्रा को अपनी थार लॉन्च करनी थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उस जीप ने केस कर दिया महिंद्रा पे। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हाँ, अगर इंडिया में पेटेंट लिया है, इंडिया में डिजाइन लिया है, तो इंडिया से बाहर एनफोर्स नहीं हो पाता है वो। आपको उस कंट्री में भी पेटेंट लेना पड़ता है, उस कंपनी में भी डिजाइन, मतलब उस कंट्री में भी डिजाइन आपको लेना पड़ता है। ये एक और एग्जांपल है। सभी बोटल्स है लेकिन सब एक दूसरे से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि सबका डिजाइन अलग अलग है। तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ट्रेडमार्क। और अच्छा, मुझे बताइए, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, कभी कभी किसी ब्रांड को देखते हैं, या टीवी में आप ऐड देखते होंगे, जैसे पेप्सी का नाम है, तो इनके नाम के साथ में कभी कभी आर लिखा होता है छोटा सा गोले में, और कभी कभी टी एम लिखा होता है। उसका मीनिंग क्या होता है, आपने सोचा है कभी? छोटा सा टी एम लिखा होगा गोले में या फिर आर लिखा होगा गोले में, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि अगर टीएम लिखा है, उसका मतलब है कि ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन तो डाल दी है पर मिला नहीं है अभी। और अगर वो आर लिखने लगे हैं, इसका मतलब है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया था और मिल भी गया है। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? बेसिकली किसी कंपनी का नाम, वर्ड, सिंबल, इसका पर्पज है ब्रांड वैल्यू को प्रोटेक्ट करना। तो कोई ब्रांड अगर अपना नाम वर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई टैगलाइन होती है या कोई सिंबल होता है, जैसे एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई और कंपनी उसे कॉपी ना करे, उसको यूज ना करे, तो इसके लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। और जो फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे दिल्ली और जो एनसीआर वाला रीजन है, इसमें जो सरदार जी मलाई चाप वाला, इसकी फ्रेंचाइजी चलती है। मैकडोनल्ड जो बर्गर बनाती है कंपनी, इसकी फ्रेंचाइजी मिलती है, राइट। इसका जो एम, जो पहला सिंबल मैंने लगाया है एम वाला, ये मैकडोनल्ड कंपनी का है। और ये उन्होंने ट्रेडमार्क जब ले लिया है, तो जब भी कोई मैकडोनल्ड कंपनी अगर कोई शॉप खोलना चाहता है, तो उनको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। ये कहने का मतलब है कि उनकी मर्जी के बिना अब इन शब्दों को, इन टैगलाइंस को कोई यूज नहीं कर सकता। टैगलाइन का एग्जांपल है ये दिल मांगे मोर, और डर के आगे जीत है। और बताइए, आपको एग्जांपल बताना चाहेंगे तो बताइए, कोई और टैगलाइन का एग्जांपल बताइए। टाटा स्काई, इसको लगाया तो लाइव झिंगा लाला। हाँ बिल्कुल सही है, सही, बिल्कुल। तो जो ट्रेडमार्क है, और ट्रेड हमने जो दो चीजें से पहले हमने देखी है ट्रेडमार्क से पहले, पेटेंट और डिजाइन। इन सब में ये दोनों चीजें ट्रेडमार्क से कैसे अलग है थोड़ी सी, कि डिजाइन और पेटेंट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंडेटरी है लेना, लेकिन ट्रेडमार्क लेना मैंडेटरी नहीं है। यानी कि अगर आप अपनी कंपनी का ब्रांड जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, कोई कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे सुप्रिया ने पिलो बनाया था अपना, तो सुप्रिया अगर अपनी सुप्रिया प्रोडक्शंस कंपनी स्टार्ट करना चाहे पिलो बेचने के लिए, तो उसको स्टार्ट करने के लिए ट्रेडमार्क लेने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर वो लेती हैं तो इसके एडवांटेज है। कैसे? सुप्रिया प्रोडक्शंस के नाम से अगर वो कोई और वही कंपनी खोलता है, कुछ भी बेचता है, तो ये सुप्रिया की रेपुटेशन पे हार्म करता है। मान लीजिए कि अगर मैकडोनल्ड ने नहीं लिया हो, पिज्जा हट ने अपना ट्रेडमार्क नहीं लिया होता, तो मैं पिज्जा हट नाम से शोरूम खोलती और उसमें हो सकता है मैं जूते बेचती,
तो लोग पिज्जा खाने आते और उनको जूते मिलते वहां, तो उनको क्या लगता है कि अरे ये पिज्जा हट तो बेकार कंपनी है, हम तो भूखे थे, खाना खाने गए थे, पिज्जा खाने गए थे, लेकिन हमें वहां तो कोई जूते का शोरूम था, वो तो आप भी मत जाना, कोई खराब है ये कंपनी, तो नाम तो खराब हुआ ना पिज्जा हट का। तो ट्रेडमार्क के साथ एक ब्रांड वैल्यू, एक रेपुटेशन स्टैंडर्ड हम लोग ट्रस्ट का बना लेते हैं कि हाँ, हम इस कंपनी के ये लोगो देख के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इस क्वालिटी का, इस मिनिमम स्टैंडर्ड को ये लोग फॉलो करेंगे, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। पेटेंट जिस तरह हमें 20 सालों के लिए मिल सकता है मैक्सिमम, ट्रेडमार्क हमें 10 सालों के लिए मिलता है एक बार में, लेकिन उसको रिन्यू करवा सकते हैं हम इनडेफिनेटली, मतलब हर 10-10 साल पे हम रिन्यू करवाते रहेंगे। आप कॉपीराइट के बारे में जानते हैं, अपनी किताबों के आगे आपने कई बार छोटा सा सी देखा होगा लिखा हुआ, और उसके साथ लिखा रहता है ऑल राइट्स रिजर्व। और लॉकडाउन के टाइम आपने अगर किसी ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया होगा तो कई बार उसमें इन्फ्रिंजमेंट आ जाता है, हमने कहते हुए सुना होगा कई लोगों को, अरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था पर कॉपीराइट आ गया। और हम कई बार वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं, तो अगर हम बॉटम में पहुंच जाते हैं, वहां भी वेबसाइट्स के नीचे भी हमको दिखाई देता है छोटा सा सी लिखा होगा, उसमें लिखा रहता है साथ में ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो वो सिंबल है कि उस कंटेंट का प्रोटेक्शन लिया हुआ है, उस कंटेंट का कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, किसने, जिसका नाम उस सी के सिंबल के सामने लिखा है साथ में, उस पर्सन ने। अच्छा, कॉपीराइट किन किन चीजों के लिए मिलता है? कॉपीराइट सभी आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क के लिए मिलता है। लिटरेरी वर्क कौन कौन से हो सकते हैं? नॉवेल हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई पोएम हो सकती है, राइट। और आर्टिस्टिक वर्क क्या क्या हो सकते हैं? पेंटिंग हो सकती है, जो भी ड्रामा हो सकता है, आर्टिस्ट जो चीजें परफॉर्म करता है उन सभी का कॉपीराइट लिया जा सकता है। जो आप सीरियल्स देखते हैं टीवी में, एपिसोड्स जो होते हैं उनके भी कॉपीराइट लिए जाते हैं, मूवीज की कॉपीराइट लिए जाते हैं, गानों के लिए जाते हैं, डांस के लिए जाते हैं। और जो माइकल जैक्सन थे, उन्होंने अपनी मून वॉक की जो स्टाइल थी उनकी डांस करने की, उसका कॉपीराइट लिया था। और उनका जो स्मूथ क्रिमिनल एक सॉन्ग है, अगर आप में से ज़्यादातर लोगों ने आई थिंक देखा ही होगा, उसमें वो उनका बहुत ही फेमस मूव है, उसमें 45 डिग्री पे वो टिल्ट हो जाते हैं माइकल जैक्सन गाने में स्टेज पे। तो वो कैसे हुआ? वो उनका जो जूता था ना, वो उन्होंने पेटेंट लिया था उनका, उस जूते का नाम रखा था उन्होंने एंटी ग्रेविटी शू। उसमें अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक होल जैसा था, और स्टेज पे कील लगा दी थी तो वो फिट हो जाती थी, वो चिपक जाता था उससे जूता, तो वो टिल्ट हो जाते थे और गिरते नहीं थे। तो वैसे सुनने में छोटी चीज लगती है, पर उनसे पहले किसी ने सोचा नहीं, उन्होंने ही सबसे पहले बनाया, तो उन्होंने उसका पेटेंट लिया था। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, इसे हम शॉर्ट में जीआई बोलते हैं। और इसकी टैगलाइन यही है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी जो इंडिया की जो भी हेरिटेज है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, इन सब के लिए जीआई दिया जाता है, इसे हम कहते हैं जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ज्योग्राफी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें जगह से रिलेटेड कुछ बात होगी। जगह से रिलेटेड क्या बात होती है इसमें? ये उन प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है जिनकी जो यूनिकनेस है, जो खासियत है, वो उसके ओरिजिन की वजह से है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ जाएगा। अब जैसे ये मकराना मार्बल है। अच्छा, मकराना मार्बल के साथ मैंने ताजमहल का फोटो क्यों लगाया है? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा इसका? बताइए, मकराना मार्बल के साथ मैंने ताजमहल का फोटो क्यों लगाया है? क्योंकि ताजमहल मकराना मार्बल से बना हुआ है। हाँ जी, बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ज्यादा बच्चे। चलिए मैं बता देती हूँ, थोड़ा समय की दिक्कत है, थोड़ा सा जल्दी करना है। तो मकराना मार्बल की जो यूनिकनेस है, जिस चीज के लिए मकराना मार्बल फेमस है, वो मकराना में ही अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे दार्जिलिंग टी है, सबसे पहला जीआई है इंडिया का, अगर आप ये इस टी को दार्जिलिंग से लाके अगर आप दिल्ली में उगाएंगे, गाजियाबाद में अगर वो टी वो उगाएंगे, देना है कहीं, इसीलिए तो शादी में। उसका जो फ्लेवर है टी का, दार्जिलिंग टी जो फ्लेवर के लिए फेमस है, वो वहाँ की सोइल, क्लाइमेट, पानी, स्लोप,
इन चीज़ों की वजह से, वहाँ की क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से उसका वो फ्लेवर जो डेवलप हुआ है ओवर द टाइम, इवॉल्व हुआ है, वो आप गाजियाबाद में उसे लाकर लगाएंगे तो वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएगी। इसी के लिए कि वहाँ के लोकल लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने ये जीआई का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है कि जो ब्रांड है, दार्जिलिंग टी है, तो यहाँ आप उस गाजियाबाद में अगर इस टी को लाके लगाएंगे ना, तो उसको दार्जिलिंग टी के नाम से आप ब्रांड बना के नहीं बेच सकते हैं। उसे आप दार्जिलिंग टी नहीं कह सकते, उसे गाजियाबाद टी कह सकते हैं, दार्जिलिंग टी नहीं कह सकते हैं। और इसका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का एक एग्जांपल है कांचीपुरम सिल्क, और आपके लखनऊ में जो ब्रोकेड है, लखनवी ब्रोकेड आई थिंक एंड साड़ी, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। दशहरी आम को जीआई टैग मिला है यूपी में। राजस्थान की कठपुतली है जैसे, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। कश्मीर के पश्मीना को भी मिला है। अब तक हमने 5 चीजें देखी हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज अलग अलग प्रोडक्ट में होती है। एक सिंगल प्रोडक्ट में एक से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो सकती है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक लैपटॉप, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है बताइए। इस पे देखिए एक लोगो लगा है ऊपर एप्पल का, तो लोगो किस में आता है, वर्ड, सिंबल, ब्रांड नेम, लोगोज, ये ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। तो एक ट्रेडमार्क का एग्जांपल है। इस लैपटॉप में कैमरा जो होगा आगे, और इसका जो डिस्प्ले है वो पेटेंट के अंडर प्रोटेक्ट हुआ होगा। इसका यूजर मैनुअल जो है, जो इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होंगे, यानी जो प्री डिफाइंड कंप्यूटर रीडेबल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जिन्हें हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं, उनके लिए कॉपीराइट मिला होगा। इसके बाहर के मॉडल के लिए, डिजाइन के लिए हमें डिजाइन राइट मिला होगा। राइट, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट में भी एक से ज्यादा आईपीस हो सकते हैं। अच्छा, आईपीएस का फायदा क्या है? हमको आज अचानक सरकार को सपना क्यों आ गया कि ये आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है? आपने सोचा, किसी ने बताइए, किसी को इसका जवाब पता है तो, कि अब अचानक से सरकार को क्यों सपना आ गया कि आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाने हैं? देखिए, जो चाइना है ना, चाइना हमारा पड़ोसी देश, तो इन्होंने 1970 में पेटेंट की फील्ड में कदम रखा था, और अब दुनिया की सबसे ज्यादा आईपीआर फाइलिंग चाइना की है, सबसे ज्यादा। और हम बहुत पहले से हैं इस फील्ड में, लेकिन हमारा अभी भी बहुत ही कम हिस्सा है आईपीआर फाइलिंग में। और ये देखा गया है कि जो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज पे जाती है, यानी उनका जो डेवलपमेंट होता है कंट्रीज का, वो आईपीआर फाइलिंग के इंक्रीज होने के साथ साथ होता है। यानी जो फीचर है ना, आईपीआर फाइलिंग का बढ़ना और कंट्री का डेवलप होना, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये कंसाइड करते हैं, ऐसा देखा गया है। इस वजह से, क्योंकि इंडिया को भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। आज जो हमने बात की, इसके बारे में आपको फर्दर जानना हो, कोई ट्रेनिंग लेनी हो स्पेसिफिकली, तो ये एक इकलौता गवर्नमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, नागपुर में है। और इसकी वेबसाइट भी मैंने इसी में मेंशन की है। आप इसको, इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। और इन केस आपको कोई क्वेरी हो जो अभी आप नहीं पूछ पाए अगर, तो आप मुझे मेरे मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, सर के पास मेरी मेल आईडी भी है। तो अब आप बताइए, आपको क्या क्या सवाल पूछना था, अब आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाह रहे थे बीच में, एक सवाल किसी बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा था, बताइए। मैम, आईपीआर आपने बताया कि कोई यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है, तो फिर क्रॉस बॉर्डर्स इसका कैसे यूज करते हैं? मतलब जैसे आपने कोविशील्ड का एग्जांपल दिया था, ये कहीं और डेवलप हुई है तो इंडिया में इसका पेटेंट रजिस्टर कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ है प्रोसेस? देखो, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि इसका कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो जिसे हम कहते हैं। तो ओके मैम। मेरे मेरे कहने का मीनिंग ये था कि जब आप ये राइट्स लेते हैं तो ये टेरिटोरियल नेचर वाले होते हैं। अगर आप इंडिया में फाइल करेंगे तो इंडिया में ही एनफोर्स होगा, बाहर नहीं होगा। राइट। ओके। तो इसका एक तरीका ये है, जैसे आपने मल्टी क्रॉस बॉर्डर जो यूजेस बताए हैं, इसका एक ये तरीका निकाला गया था। फाइलिंग का मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, ताकि आप समझ सकें इसके बारे में। 3 तरीकों से फाइलिंग होती है पेटेंट की,
या तो आप इंडिया में फाइल करें, इंडियन रेजिडेंट है, इंडिया में फाइल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। अगर आप इंडियन हैं और बाहर फाइल कर रहे हैं, या आप बाहर से हैं, फॉरेनर हैं, इंडिया में फाइल कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कन्वेंशनल एप्लीकेशन। कन्वेंशनल एप्लीकेशन आपको हर इंडिविजुअल कंट्री में फाइल करनी होती है जा जाके, और ओके वहाँ आपको, जैसे पेटेंट का एग्जांपल लेती हूँ मैं, पेटेंट हर कंट्री में अलग अलग लेना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, एमएनसीज, जब भी उन्हें कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में लॉन्च करना होता है, पहले वो वहाँ पर पेटेंट अप्लाई करती हैं, पेटेंट लेती हैं, उसके बाद में अपना लॉन्च करती हैं। ठीक है। और अब क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, अगर मल्टीपल कंट्री में किसी को लेना है तो एक एक कंट्री में जा जाके बहुत हेक्टिक हो जाता है काम। तो इसके लिए एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की गई थी। वाइपो के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी इनका हिस्सा है, और इसको कहते हैं पीसीटी। तो ये जो पीसीटी रूट के अंडर एक एप्लीकेशन, एक सिंगल फॉर्म होता है, इसमें कंट्रीज पर सिर्फ टिक लगाना होता है आपको कि हाँ मुझे ये कंट्री में भी फाइल करना है, इसमें भी करना है। तो एक फॉर्म फिल करके आप मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके और स्टेप बाय स्टेप वो अलग अलग कंट्री में नेशनल फेज में एग्जामिनेशन उसका पेटेंट फाइल का होगा, और वहाँ की कंट्री उनके खुद के एक्ट के हिसाब से आपको पेटेंट देना है कि नहीं वो डिसाइड करे। समझ गए? हाँ मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये 20 साल और बाद बताइए। पेटेंटिंग 20 साल बाद पेटेंटिंग हटाने का क्या मतलब है? क्या व्हाट इज जस्टिफिकेशन फॉर दैट? हाँ 20 साल बाद देखिए, हटा देते ये आईपीआर दिए किस लिए जाते हैं सर? पेटेंट देने का पर्पस ये नहीं है कि एक पर्सन को मोनोपोली दी जाए हमेशा के लिए। आईपीआर देने का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि इनोवेशन प्रमोट करना है कंट्री में, कि लोग नई नई चीजें बनाए। इसके लिए बैलेंस जरूरी है कि जो क्रिएटर है, जो इनोवेट कर रहा है, उसके भी राइट प्रोटेक्ट हो, उसको भी कुछ बेनिफिट हो कि मैं क्यों बनाऊं नई चीजें, और कुछ पब्लिक का भी फायदा हो, क्योंकि इंडिया तो वेलफेयर स्टेट है, तो पहले पब्लिक का भी सोचता है। तो जब 20 साल के लिए आपको उस प्रोडक्ट पर मोनोपोली देती है गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि मैं इंश्योर करूंगी थ्रू जुडिशियरी कि आपके वो राइट, आईपीआर जो है, पेटेंट राइट जो है, प्रोटेक्ट हो, एनफोर्स हो। उनका एनफोर्समेंट गवर्नमेंट इंश्योर करती है इस शर्त पर कि 20 साल तक आप उसको यूज करोगे, उसके बाद ये पूरी पब्लिक का हो जाएगा। पर 20 20 साल साल ही तक क्यों? जो 20 साल ही क्यों? हाँ, ये लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है क्योंकि सर, और ये 20 साल सिर्फ मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले भी लैप्स हो सकता है। या तो एप्लीकेंट इसको विड्रॉ कर सके, अगर करना अगर चाहे, या फिर आप रिन्यू अगर नहीं कराएंगे। अगर इनोवेशन प्रमोट करना है तो इसको जल्दी खत्म करना चाहिए। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट कई बार उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल पाते हैं। और ये तो देखिए, वैसे ये पॉलिसी मैटर है एक्चुअली, मेरा इस पे कमेंट करना वैसे तो ठीक नहीं होगा। मुश्किल है जान, ये एक नहीं पॉलिसी मुश्किल है। मैटर है। जो जस्टिफिकेशन देते नहीं, जब भी जैसे कोई टैक्सेशन करते हैं तो नहीं बताते हैं कि 20% क्यों, 18% क्यों नहीं बताते हैं। वो कर देते हैं इतना परसेंट टैक्स होगा, तो उसकी वजह नहीं क्या नहीं देखिए, मालूम। इसमें एक्चुअली, हाँ, इसकी वजह एक्चुअली मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन जो होता है, उसमें इसका आंसर होता है, तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है बिना हाँ, डेटा के हो सकता है, हो जी। सकता है, हो सकता है। हाँ, सही कह रही हूँ, ठीक, थैंक यू। तो ये 20 साल 20 साल यही सोचकर निर्धारित किया गया है कि क्रिएटर जो इन्वेंटर है उसको भी कुछ बेनिफिट मिले, प्लस उसको बेनिफिट जो दिया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद कंट्री में भी सबको भी उसको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिले। हाँ, या ऐसा लगता है ऐसा कोई नेचुरल जस्टिस है, देयर मे बी सम नेचुरल जस्टिस। सर, नेचुरल ओके, जस्टिस के थैंक लिए ही तो सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। या जब यही मैं कह आपकी रहा था। एप्लीकेशन हाँ हाँ जी, एप्लीकेशन जब एप्लीकेंट की आती है, तो अगर हमें लगता है कि उसको पेटेंट नहीं मिल सकता, चांसेस नहीं है, फिर भी आखिर में उसको एक हियरिंग दी जाती है, और वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि नेचुरल जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। जी जी। और बताइए, आपको किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो। गुड मॉर्निंग हाँ मैम। जी, आई एम डॉक्टर कृष्णा कुमार फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जी बहुत बताइए। अच्छे से आपने कंसाइजली बहुत अच्छे से ब्रीफ किया अबाउट पेटेंट के प्रोसेस के बारे में, अपने ऑफिस के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो पीएचडी के लिए बच्चे रजिस्टर होते हैं वो 3 इयर्स के लिए होते हैं, 3 इयर्स में हमें उन्हें पीएचडी देना होता है। तो उसी से रिलेटेड मेरा कंसर्न है कि यदि हम पेटेंट फाइल करते हैं तो उसके लिए चार्जेस और टाइमिंग क्या लगने वाले हैं? देखिए, चार्जेस जो Complete. है, हर फॉर्म के अलग चार्जेस हैं सर। चार्जेस कहना गलत होगा, फीस कह सकते हैं हम। तो Right. शेड्यूल 1 जो है पेटेंट एक्ट का, शेड्यूल 1 आप चेक कीजिएगा,
हर फीस का हर फॉर्म का फीस उसमें मेंशन किया है शेड्यूल 1 में। और जो आपने बताया कि प्रोसीजर क्या है, मैं ये एक आपको मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट या सजेशन मान लीजिए कि आप एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट करें जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है 3 साल बाद वो कॉलेज से निकल जाएंगे और पेटेंट अगर आप ऑर्डिनरीली फाइल करते हैं तो टाइम लेता है, तो वो उनमें मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है बाद में, राइट अगर मैम, उसमें तो 5 वो साल 6 साल लग यदि गया तो। नॉर्मल प्रोसेस हम फॉलो करें तो उसमें क्या टाइमिंग कितने लग जाती है? देखिए ये टाइमिंग वैसे तो कितना लगता है पेटेंट में पूरी तरह एप्लीकेंट पे भी डिपेंड करता है और कुछ ऑफिस पे भी डिपेंड करता है, पेटेंट ऑफिस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो 18 महीनों तक पेटेंट ऑफिस वेट करता है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म डालना है कि नहीं। शुरू में तो वो पब्लिकेशन के लिए 15 मंथ वेट करना होता है हमें। अगर आप उसके पहले अगर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 9 डाल देते हैं, 1.5 महीने में या 1 महीने में आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो जाता है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म 18 उसी वक्त डाल दिया है यानी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन डाल दिया है तो तुरंत आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा 2 महीने के आसपास ही। उसके बाद आपको ऑफिस से फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजी जाती है कि आपकी ये एप्लीकेशन इसलिए ग्रांट नहीं हो पा रही है या ये इसमें कमियां हैं, ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वो जब आपको मिलती है तो उसके लिए आपको 6 महीने का समय दिया जाता है। वो 6 महीने के अंदर आपको वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है या उसका रिस्पॉन्स यानी रिप्लाई फाइल करना है। तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू FER, रिस्पॉन्स टू फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर एप्लीकेंट उसे 6 महीने के एंड में फाइल करता है या शुरू में जल्दी फाइल कर देता है, राइट, तो इस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम मिलना है, कितना टाइम पेटेंट को लगने वाला है लेने में। एंड मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो बताऊं अभी करंटली जो चल रहा है और पिछले 5 साल में मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, जब मैं यहाँ आई थी मैंने 1985 की भी फाइल देखी है, वो फाइल भी मैंने एग्जामिन की है। और अभी जो पेंडेंसी क्लियर जिस हिसाब से हुई है तो उसमें अगर आप एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं विद इन 6-7 मंथ भी आपकी फाइल पूरी तरह से हो सकता है कि ग्रांट हो जाए। इसे हम कहते हैं डिस्पोजल, यानी जो ग्रांट होना है तो ग्रांट होगी, रिजेक्ट होना है तो रिजेक्ट होगी, जो भी उसमें होना होगा डिस्पोज 6-7 महीने में भी हो जाती है आजकल। और वो चार्जेस मैम, फीस उसकी? हाँ, फीस शेड्यूल 1 में आप देख लीजिएगा, अभी रिसेंटली उनमें चेंजेस आए हैं, बस अभी आई थिंक मैंने शायद देख भी नहीं पाई हूँ मैं। और उससे जस्ट पहले जो फीस थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। एक एग्जांपल देना चाहूँगी, फॉर्म 1 जिसको हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं उसकी इंडिविजुअल पर्सन के लिए यानी जो नेचुरल पर्सन जिसे हम कहते हैं उसके लिए 1600 रुपये से उसकी फीस होती है। और अगर कंपनी कोई फाइल कर रही है, वो स्टार्टअप नहीं है या वो स्मॉल एंटिटी नहीं है, तो उसके लिए 4000 उसकी फीस होती थी। आई थिंक ये फर्दर कम कर दी गई है आई थिंक। और अगर आप एक सिंगल एप्लीकेंट फाइल करें या 10 एप्लीकेंट फाइल करें, सबका टोटल वो 1600 ही है फॉर्म 1 का। और उस फॉर्म 1 के साथ आपको 30 पेजेस ऑफ डिस्क्रिप्शन प्लस 10 क्लेम्स, ये चीज़ आप फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद एडिशनल फीस लगती है, फिर अगर 10 क्लेम के बाद आप 11वां क्लेम भी आपका फाइल करना है आपने, जैसे 15 क्लेम है तो वो 5 एक्स्ट्रा क्लेम के लिए आपको एडिशनल फीस देनी होती है। तो ये आप शेड्यूल 1 में चेक कर लीजिएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और शुरू में सर ने ऐसा बताया था कि बच्चों को प्रैक्टिकली फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत आता है इसमें। इसमें एक स्कीम है गवर्नमेंट की SIPP एंड TISC। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, बच्चों से और सभी फैकल्टी मेंबर से भी, कि इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। आज मेरे पास समय थोड़ा कम है, मेरा दूसरा सेशन होना है। तो SIPP स्टार्टअप्स के लिए है और सेम बेनिफिट्स TISC में इंडिविजुअल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। इनमें होता ये है बेसिकली कि आपको एक एडवोकेट दिया जाता है, वो एक एक्सपर्ट होता है, फील्ड एक्सपर्ट होता है, पेटेंट अटर्नी उसे हम कहते हैं। वो आपके बिहाफ पे पेटेंट फाइल भी करेगा, आपको गाइड भी करेगा, सब कुछ बताएगा, लेकिन वो फीस आपसे नहीं लेगा। उसे हम लीगल टर्म में फैसिलिटेटर कहते हैं। तो वो फीस हमारे ऑफिस से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेगा, आपसे फीस नहीं लेगा। यानी अगर किसी बच्चे ने कुछ बनाया है, उसको पेटेंट फाइल करने में दिक्कत आ रही है, तो वो फैसिलिटेटर उसे पूरी तरह गाइड करेगा, सब कुछ बताएगा, समझाएगा, लेकिन फीस वो उससे बच्चे से नहीं लेगा, वो इंडियन पेटेंट ऑफिस से लेगा। तो TISC, हाँ TISC है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स, और जो SIPP है ये स्कीम स्पेसिफिकली स्टार्टअप के लिए है। बेनिफिट दोनों में सेम है, SIPP स्टार्टअप्स के लिए है, TISC इंडिविजुअल्स के लिए है। जी, थैंक यू।
ओके सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड अगर मॉर्निंग। कोई प्रोडक्ट मैम अगर फॉरेन में मैम वो बन चुका है और मतलब जी। टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है हम्म, और इंडिया में वो चीज़ नहीं बना है, तो मैम क्या इंडिया में उसका पेटेंट हो सकता है मैम? नहीं, पेटेंट की रिक्वायरमेंट ये है सबसे पहले कि वो चीज़ आपकी कहीं बनी नहीं होनी चाहिए। मैम वो डिफरेंशिएटर उसमें है मैम, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हाँ, कॉपी। हाँ, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटर है तो अगर डिफरेंशिएटर है तो बिल्कुल ले सकते हैं आप पेटेंट। और इसमें जो कंट्रोलर एक अथॉरिटी होती है जो ग्रांट करती है आपका पेटेंट, अगर उसको आप सेटिस्फाई कर पाते हो अपने डिफरेंशिएट जो करके आप उसको, क्योंकि देखिए इसमें होता ये है कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, ये जो कम्युनिकेशन बाय पोस्ट होता है, ऑनलाइन होता है, तो इसको मैं ये समझ के चले हम कि हम आमने सामने जैसे हम बैठे हैं, तो मैं कंट्रोलर हूँ जैसे और आप एप्लीकेंट है, तो आपको मुझे इस ये कन्विंस करना है कह के कि मुझे क्यों मिलना चाहिए पेटेंट। मेरा पेटेंट उस जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है फॉरेन में कहीं भी कंट्री में, उससे मेरा किस तरह अलग है, उससे मेरा किस तरह बेहतर है, क्या क्या रीजन आप देना चाहेंगे। तो ये कहने का मतलब थोड़ा डिस्क्रिशनरी पावर्स कंट्रोलर्स को मिली हुई है, इसमें सब्जेक्टिव है कि उसको आप कन्विंस कर पाते हैं तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल। और कॉपीराइट में ऐसा नहीं है कि कहीं और बना है या नहीं है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, उसमें आपको मिल जाता है, ओरिजिनलिटी से हम कहते हैं। पेटेंट में ऐसा है कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर वो पहले से चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसका नहीं मिल पाता है, बशर्ते आपने उसमें कुछ चेंजेस ऐसे नहीं किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खास हो, तो आपको पेटेंट नहीं मिलता है। और जो कॉपीराइट है उसमें, कॉपीराइट में ऐसा होता है कि अगर आपने जैसे कविता लिखी है आज और आपका कोई रिलेशन नहीं है एक पर्सन से जिसने अमेरिका में भी वही सेम कविता लिख दी है, कोइंसिडेंटली दोनों ने सेम चीज़ लिखी है, लेकिन आप दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो भी आपको कॉपीराइट दिया जाएगा और ये माना जाएगा आप उसके ओरिजिनल क्रिएटर हैं। जिस दिन लेकिन ये साबित हो गया या उस पर्सन ने कर दिया कि आप उससे मिले थे, आपने उसकी कॉपी किया था कविता को, या उसने आपका किया था, तो फिर आपका वो राइट रिवोक हो सकता है, अदरवाइज आपको मिल जाएगा कॉपीराइट। मैम मतलब अगर हम प्रूफ ऑफ बर्डन आप पर नहीं होता है कॉपीराइट में। हाँ जी बताइए। अगर आज हम मतलब पेटेंट के अप्लाई किए हैं, तो मैम मान लीजिए 5 साल बाद अप्रूव होने वाला हो और हम्म, उसके बीच किसी और ने उसी चीज को बना के उसने भी अप्लाई कर दिया, तो मैम हम्म। उस केस में क्या होगा मैम? उस केस में हाँ, मेरा आप ही उस केस में उस पर्सन को कुछ नहीं मिलेगा, आपने क्योंकि पहले फाइल किया है, आप ही को प्रायोरिटी मिलेगा, ऐसा ओके, माना जाएगा कि उसने आपका कॉपी किया है। थैंक यू। जी, इसीलिए इसमें टाइमलाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो पहले फाइल करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप किसी से डिस्क्लोज ना करें अपना इन्वेंशन, सबसे पहले फाइल करें, उसके बाद किसी को बताएं। बहुत बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि उनके करीबी जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वहीं आकर पहले फाइल कर देते हैं, तो फिर ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वो चीज़ आपने बनाई या उन्होंने बनाई। जो पहले फाइल करता है उसी का ही समझा जाता है, ओरिजिनल क्रिएटर उसी को माना जाता है। ठीक है सर। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये था मैम हम्म, कि मैंने कोई डिजाइन बनाई और उसको हम्म, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो क्या हम्म। कुछ समय बाद हम उसका पेटेंट करा सकते हैं? नहीं, अगर आपने वो कहीं भी पब्लिश करवा दिया है, कहीं भी पब्लिक डोमेन में उसको डाल दिया है, तो फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको फाइल करना है पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट जो भी है, पहले आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस में आके फाइल करना है उसको, उसके बाद में आप कहीं और पब्लिश करवाइए। ओके, थैंक यू मैम। अगर आपने, हाँ, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, पता नहीं होता है बहुत लोगों को। आप जब भी कुछ बनाएं उसके आप अगर पेपर पब्लिश कर देते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स खासकर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, अपना पेपर पब्लिश कर दिया है, उसके बाद आप पेटेंट के लिए आते हैं, तो उसे हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं साइटेशंस, प्रायर डॉक्यूमेंट, यानी हम वही डॉक्यूमेंट साइट कर देंगे कि आपने यहाँ से कॉपी किया है, चाहे आपका खुद का ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब ये है, आप कहीं पब्लिश नहीं करवाइए, उसे पब्लिक डोमेन में मत डालिए, पहले पेटेंट ऑफिस में उसकी एप्लीकेशन डालिए, उसके बाद में आप कहीं भी पब्लिश करवाइए। मैम कई मैम बार हम्म, ऐसा होता है कि एक पार्शियल रिजल्ट को हम पब्लिश करा देते हैं, एक हम्म। पार्शियल रिजल्ट को, छोटा सा रिजल्ट उसका मे बी 20% 30%, हाँ जी, हाँ जी। उसको हम पब्लिश करा देते हैं, बाकी को हम पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इज इट आल्सो नॉट ओके कि वी कैन पब्लिश अ पार्शियल रिजल्ट ऑफ दैट? डिपेंड करता है कि आप कंट्रोलर को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं। हाँ, वही ओके सेम ओके। क्वेश्चन है कि ये क्योंकि सब्जेक्टिव है, आप उसको कन्विंस कर सब्जेक्टिव। पाते हैं कि नहीं, देखिए मैंने कुछ इसका क्योंकि आपने अपने साथ जो बचाया हुआ है डेटा, वो मेन, अगर वो है मेन कंटेंट, उसमें अगर इन्वेंटिवनेस है आपकी, वो डिस्टिंक्ट है आपका, तो वो मिल जाएगा बेशक। ओके ओके ओके। तो इन जनरल आप ये मानकर चलिए कि अगर आप कहीं और डिस्क्लोज करते हैं तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा फिर।
हाँ बेटर है उसको ना पब्लिश कराया जाए, बेटर है क्योंकि हाँ, पेटेंट पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट सभी के लिए है ये कि आप कहीं हाँ। पब्लिश ना कराएं ना कराएं। जी। गुड आफ्टरनून पेपर, हाँ जी बताइए। मेरा नाम पीयूष है। मैं डिजाइन के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर मैं कोई डिजाइन बनाता हूँ, कोई भी कैड जी। मॉडल बनाता हूँ, तो क्या मैं डिजाइन का भी पेटेंट करा सकता हूँ बिना उसका फिजिकल हार्डवेयर बनाए हुए, बिना उसको मैन्युफैक्चरिंग में गए हुए? सिर्फ और सिर्फ हाँ डिजाइन का भी पेटेंट कर सकते हैं क्या हम? हाँ, देखिए सिर्फ और सिर्फ डिजाइन का पेटेंट नहीं कहते, उसे डिजाइन राइट ही कहते हैं। पेटेंट और डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पेटेंट में फंक्शनैलिटी रहती है, डिजाइन में कोई मशीन फंक्शन करी जरूरी नहीं है, बस वो सुंदर दिख रही है जैसे खिलौना है, उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही पर्पज पूरा करता है, तो उसका डिजाइन आप ले सकते हो। पेटेंट में मशीन वर्क करती है, उसको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ये कंडीशन पेटेंट के साथ होती है। तो जैसे सेम चीज हाँ का मैं डिजाइन और पेटेंट ले सकते हैं आप। और हाँ हाँ बताइए। वही जानना कि सॉफ्टवेयर में ही मैं उसको फिजिकल बिना प्रोडक्शन में गए हुए अगर सॉफ्टवेयर हाँ में ही मैं उसको रन करा लेता हूँ, है ना? जैसे अभी कुछ दिनों पहले 3-4 साल पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हाथ में एक ये छोटा तो सा हो साइकिल सकता है पीछे available घुमाते हो। रहते थे, है ना? एक छोटा सा हाँ प्रोडक्ट आया था कि हाँ हाथ में लोग घुमाते रहे, राउंड करते रहते थे, लट्टू टाइप का प्रोडक्ट था। हाँ, तो देखिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट था। मैं समझ गई आपका, आपकी बात समझ गई मैं कि मॉडल बनाना, प्रोटोटाइप बनाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं राइट है। राइट वर्किंग मॉडल बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ती है, तो सेक्शन 16(4) के अंडर हम मांगते हैं वर्किंग मॉडल। अदरवाइज प्रोटोटाइप, वर्किंग मॉडल ये बनाना जरूरी नहीं होता। सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है, उसका मतलब है आपको पूरी डिटेल उसमें लिखनी होती है रिटर्न में कि ये ऐसे मैंने बनाया है, ये कंटेंट, ये मटेरियल मैंने यूज किया है, ये सब्सटेंस इस तरह बनाया है, ये इस तरह काम करता है। उसका प्रैक्टिकल डेटा आप डिस्क्लोज करते हैं, उसका ड्राइंग्स फिगर उसमें डिस्क्लोज करते हैं। बस ये चीजें रिक्वायर्ड होती है इन जनरल। थैंक यू जी मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये छोटा सा, ये हमारे लैब में बच्चों ने बनाया है। जी ये सर। टैब रखने के लिए है, ठीक है? जी ये टैब लैपटॉप रखने के लिए डिजाइन बनाया है, तो क्या हम इसको डिजाइन पेटेंट के लिए जा सकते हैं अगर इसमें कुछ यूनिकनेस है तो? देखिए, इसको तो आप अगर कोई इसका फंक्शन है ना, जिस पर्पज से आप बना रहे या हो उसका फंक्शन है, तो उसका पेटेंट भी या ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पेटेंट भी ले सकते हैं, डिजाइन तो ले ही सकते हैं, पेटेंट भी ले सकते हैं। लेकिन वही उसके जो क्राइटेरियाज है कि ये चीज उसको पहले तो नहीं बनी है, ओके, उसको आपने, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हाँ कुछ जो पेटेंट एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती होगी, तो बेशक आपकी नहीं, एलिजिबल। पहले तो नहीं बना होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ इसमें यूनिकनेस ला सकते हैं विच कैन मेक हाँ इट हाँ बेटर, या हाँ विच जी, कैन मेक इट बेटर या। तब आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं, पेटेंट आपको चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे। ओके। मैं एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पर कि आप जब भी कोई चीज बनाते हैं ना, स्टूडेंट्स भी अगर बनाते हैं, तो हाँ आप ये देखा कीजिएगा पहले कि ये चीज पहले एग्जिस्ट तो नहीं करती। इसे हम कहते हैं कि आप अपने लेवल पे प्रायर आर्ट सर्च कर लीजिएगा। प्रायर आर्ट सर्च का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने जैसे बताया मुझे ये टैब, जो आपने टैब बनाया है लैपटॉप रखने के लिए कुछ बनाया है, तो ये चीज इस फील्ड में कितना काम आज तक हो चुका है, ये किसी ने पहले बनाया तो नहीं है, और बनाया है तो कहाँ तक ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो उसके आगे आप काम शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि आप कई साल मतलब काफी मेहनत करके आपने वो चीज बनाया है जो आपको पता नहीं था, पर कहीं और बना हुआ है, राइट। तो ऐसा होता है, तो फिर वो पेटेंट तो नहीं मिल पाता है उसका। और फ्री सर्च इंजन है जैसे गूगल पेटेंट है, तो गूगल पे आप गूगल पेटेंट डालेंगे तो एक पूरा गूगल का डेटाबेस है, तो उस पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज पहले से पेटेंटेड है नहीं है। ओके। और हाँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है गूगल पेटेंट, बाकी फर्दर भी होते हैं। बाय मेल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई और अगर फर्दर इसमें जानना चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट, तो मेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ठीक है जैसे मैम। कि आपने गूगल पेटेंट वाला बताया वो तो अच्छा है कि गूगल पेटेंट से हम पता कर लें, लेकिन जैसे कि हम पेपर पब्लिश करते हैं तो हम डायरेक्ट जर्नल को जाके उसको एसेस कर सकते हैं, तो क्या इंडियन पेटेंट राइट वाले कुछ ऐसा उनका डेटाबेस है हाँ या हाँ, उसका कोई कॉपीराइट। ऐसे पब्लिक डोमेन में है कि उसको हम हाँ एसेस जी, कर सकते हैं? कॉपीराइट की आप उस पे जाइएगा, रजिस्ट्री है कॉपीराइट का भी, जो जो चीजें आप आज तक कॉपीराइट जिनका हुआ है उनका पूरा एक डेटाबेस है, आर्काइव मेंटेन किया हुआ है पूरा। वो किस पे, कौन सी वेबसाइट पे मैम? पेटेंट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप आईपी इंडिया ऑनलाइन पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं। और कॉपीराइट की रजिस्ट्री तो आप सीधा गूगल पे करेंगे ना, अच्छा कॉपीराइट ये वेबसाइट एक अलग भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, इंडियन तो पेटेंट की पेटेंट तरह ही इसका कॉपीराइट। भी डेटाबेस है। हाँ जी। अच्छा। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून।
मेरा नाम हर्ष सहगल है और मैम मैं 1 साल से मतलब वीडियो यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ और मतलब यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा मतलब हम लोग ड्रोन पे भी काम कर रहे हैं अपनी लैब में, अपने कॉलेज में, तो अगर हम ऐसा कोई एक ड्रोन बनाते हैं और उसका एकदम इनिशियल से फाइनल स्टेज तक पूरी एक प्रोसीजर बता देते हैं वीडियो के थ्रू, ठीक है? और वो मतलब उसमें हम पूरा ये नहीं है कि मतलब कहीं से कॉपी कर रहे हैं या पूरा मतलब एक A to Z पूरा मतलब बताते हैं, तो तब भी हम मतलब तब भी वो ये माना जाएगा कि भाई पब्लिक डोमेन में है और उसको कॉपीराइट में डाल सकते हैं, हाँ, मतलब हाँ। सॉरी पेटेंट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, चाहे आप डिस्क्लोज करें या कोई और करे। आपकी एप्लीकेशन आने से पहले, पेटेंट ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन आने से पहले अगर वो पब्लिक डोमेन में है तो वो आपका कंसिडर नहीं, मतलब उसको पेटेंट या जो भी आप आईपीआर फाइल कर रहे हैं कॉपीराइट वो नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, अच्छा। जी। तो मैम इसके पीछे क्या और रीजन होता है? ये मान के चलिए, हाँ, इसके पीछे ये रीजन है कि यही कि इन्फ्रिंजमेंट रोका जाता है कई बार। इन्फ्रिंजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें लाई गई हैं। और हाँ, आप बताइए, मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया है मैं जो बता रही थी। पर वो चीज मेरा ही किया हुआ है तो उसमें कहाँ से मतलब आ सकता है? हाँ, तब भी ये प्रोविजन है, आपका भी किया हुआ है, आपने खुद ने पहले पब्लिश कर दिया और फिर बाद में आपने पेटेंट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जो रिसेंटली वो हुए हैं, अभी चेंजेस हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। रिसेंटली इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि किस केस में आपका वो पहले से जो आपने पब्लिश करवाया है वो नहीं माना जाएगा। पर इन जनरल यही है कि आप कहीं भी खुद भी पब्लिश करवाते हैं तो उसका फिर पेटेंट कॉपीराइट नहीं मिल पाता है। और पेटेंट ऑफिस के पास इतना सफिशिएंट एक्सेस होता है कि दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ बनी है, उसका पेटेंट फाइल हुआ है या यूट्यूब पे भी कहीं डाला है तो वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आपको जाएगी उसमें वो डॉक्यूमेंट हम लोग लगा देते हैं कि देखिए ये चीज़ पहले से बनी हुई है, आप इसका पेटेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है सर। ओके तो मैम। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी आप जो भी फर्दर क्वेरी होगी तो आप मुझे बाय मेल या जो ग्रुप सर ने बनाया है उस पे पूछ सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जाना होगा, मेरा एक ऑफलाइन सेशन है आज। जी। Thank you. So thank you very Thank much, you. ma'am, Thank you so for this valuable lectures. और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत फायदा मिला होगा Just आपके लेक्चर से। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग या अच्छा, हाँ, बताइए अच्छा प्रोफेसर जेस कुमार। आई एम प्रोफेसर जेस कुमार फ्रॉम IGDTU दिल्ली। मैम मैं दो बोला था, एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस में स्पेशली क्या की पॉइंट है जिसको हमको डिफरेंशिएट या उस टाइप से पेटेंट के लिए जाना है? हाँ, प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट में ये है कि प्रोडक्ट पेटेंट एक थोड़ा एब्सोल्यूट नेचर वाला होता है, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल ये जो फोन है मेरे हाथ में, इस फोन का अगर मैं पेटेंट ले लेती हूँ तो इस फोन को कोई और नहीं बना सकता, चाहे किसी भी तरीके से। मैंने मान लीजिए स्टेप 1 2 3 फॉलो करके इसको बनाया है, लेकिन कोई और पर्सन 3 4 5 या कोई और तरीके से भी ये फोन नहीं बना सकता है, ये बनाकर नहीं बेच सकता है। यानी ये प्रोडक्ट मैंने पेटेंट ले लिया तो ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। लेकिन अगर प्रोसेस लिया है तो जो तरीका मैंने अपनाया है बनाने का, वो तरीका ना अपना के कोई और तरीके से वो बना ली जाए वो मशीन, तो फिर वो यूज कर सकता है उसे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेथड अगर प्रोसेस अगर डिफरेंट है तो फिर आप वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं, बस आप प्रोसेस वो नहीं ले सकते। तो प्रोडक्ट पेटेंट एक बेटर ऑप्शन है, प्रोडक्ट पेटेंट ज्यादा राइट्स। हाँ, हाँ जी। ये तो मेथड का भी पेटेंट करवा सकते हैं हम लोग। हाँ, प्रोडक्ट हाँ की जी बजाय सर। मेथड का भी दिया। हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्ट का भी और मेथड का भी, मेथड का भी दोनों का। पेटेंट करवा सकते हैं। हाँ, करेक्ट। कोई मशीन हो या मशीन बनाने का तरीका हो, कोई दवाई है या दवाई बनाने का मेथड हो, और जो दवाइयाँ हैं उसके लिए यूजेस के भी मिलते हैं। दवाई तो बनाने सेम का तरीका मैम, सच नहीं सेम प्रोडक्ट एक्चुअली। है, सेम हाँ जी। प्रोडक्ट है, बट उसका अगर मेथड हमने चेंज करके कोई नोवेल मेथड प्रपोज किया है, सेम हाँ, तो फिर प्रोडक्ट मेथड, ऑलरेडी, तो मेथड का हाँ पेटेंट कर हाँ सकते हैं। हाँ, ठीक है, मेथड ले सकते हो आप। मेथड के लिए उसके साथ थोड़ी सी कंडीशंस ये अप्लाई होती हैं कि आपने जो भी तरीका, जैसे फार्मास्यूटिकल में खासकर मैं बताऊं तो उसमें आपसे एम्पिरिकल डेटा मांगा जाता है कि उसकी कुछ एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। हाँ, मेथड की एफिशिएंसी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि आप इधर से कान पकड़ रहे हो, इधर से पकड़ रहे हो, हाँ, कोई बिल्कुल। बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, वही मतलब मेथड का बेनिफिट होना चाहिए, मोर कुछ एफिशिएंट थोड़ा होना सा चाहिए उसका। समथिंग। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ, बाकी ले सकते हैं आप।
आपको यूज नहीं होगा। देखिए पेटेंट लेने का पर्पस क्या होता है कंपनीज का, आईपीआर लेने का पर्पस होता है बिजनेस करना, कमर्शियल बेनिफिट उसका लेना। तो अगर एफिशिएंसी नहीं होती है तो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट चलेगा भी नहीं ना मार्केट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ठीक है। दवाइयों के केस में यूसेज के लिए जाते हैं पेटेंट। एक दवाई आपने बनाई है, एक तो उसका एक यूज आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पैरासीटामोल, मैं दवाई का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर आप कहते हैं कि ये दवाई मैंने बनाई है, ये कैंसर भी ठीक करती है, ये पेन किलर भी है और ये डायबिटीज भी ठीक करती है, तो इतने सारे यूसेज नहीं मिल पाएंगे। एक दवाई का एक यूज आप क्लेम कर सकते हैं एक बार में, कि आप खुद चुन लीजिए इनमें से कौन सा आप लेना चाहते हैं। या तो इस दवाई के लिए आप कैंसर का ही यूज पेटेंट ले सकते हैं, या आप डायबिटीज का ही ले सकते हैं, या पेन किलर का ही ले सकते हैं। तो और ये आपकी जो एप्लीकेशंस होती है फील्ड एक्सपर्ट्स चेक करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स में, मेरा डोमेन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो उन्हीं से रिलेटेड एक्सपर्ट्स के पास वो फाइल जाती है जी। ठीक है, I think thank you. I think lot of lectures we got right now, और बहुत अच्छा लगा, ये बहुत सारे रिस्पॉन्सेस थे बच्चों की तरफ से, और definitely this lecture will help us a lot in deeper understanding of this patent. Though earlier lecture was also take it, but this lecture has deepened our understanding about the patent and this intellectual property right. So I'm very much thankful to ma'am for delivering this lecture, and hope we will be in touch with you. Because still we keep having a lot of doubts, and we'll be in touch with you. We'll ask a lot to you. बिल्कुल सर, इसी तरह के सेशन हम आगे भी रख सकते हैं। या एपी श्रीवास्तव जी है, एपी श्रीवास्तव सर से भी काफी टच में हम लोग हैं। उनका जो लेक्चर सेशन था बहुत बढ़िया था, और आपसे भी थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके, और आई थिंक सेशन आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत बहुत बेनिफिशियल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। नमस्कार। Thank you very much, ma'am. It was a very nice session. Thank you, ma'am. जी, Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am. So with this we can end this workshop on this intellectual property awareness program. Okay, thank you very much, ma'am. वेलकम सर। So thank you very much, ma'am. ओके, थैंक यू। And share your email ID, please. Participants, please fill the attendance form I have shared in the WhatsApp group. Ma'am, may I share your email ID in that WhatsApp group? Somebody is asking. जी सर, मेरी मेल आईडी दे दीजिएगा। और जी, और आप चाहे तो आप अभी 15 अगस्त तक नीपैम के अंडर भी एक और सेशन हम ले सकते हैं। उसके बाद भी, क्योंकि नीपैम का जो प्रोग्राम चल रहा है वो 15 अगस्त तक उसका डेडलाइन है, उसके बाद भी अगर आप चाहे तो आपके इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन भी करवा सकते हैं हम लोग प्रोग्राम, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। Okay, sure, ma'am. हाँ, इंस्टीट्यूशंस के रिक्वायरमेंट पे हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इस तरह के सेशन अरेंज कर सकती है हमेशा। Okay, sure, ma'am. ओके सर, ओके, Okay, थैंक यू सो you मच। very much. अभी हाँ ठीक है सर, तो सर कैन आई एग्जिट ना? Yes, ma'am, sure. ओके सर, थैंक यू सो मच। I'm closing this meeting now.